Hello everyone, so today we'll see practice set 3.3. In this practice set there are two methods, one is synthetic method and second is linear division method. So here we have to solve each question by synthetic division method and linear division method. Okay, so by these two methods we have to solve each question and both answer will come same. So we'll solve first question. So this is our first question. So this question we will solve first by synthetic division, then afterward we will solve by linear division. So here first we will solve by synthetic division. So by synthetic division method, so in synthetic division method, this is the divisor, this is the question. Okay, so always this question it should be in descending order, the power it should be in descending order, and if any term is missing, that term you have to take as a plus 0. If m variable, then plus 0m. If any other means square term is missing, then you can take plus 0m square, and if a cube term is missing, then plus 0m cube, and depend upon your question what is the variable is used. So here we will see it is already in descending order, square, then 1, then constant. So it is already in descending order, so no need to take any other term. So this is our question. Sorry, dividend, not a question. It is the dividend. It is the dividend and it is the divisor. So dividend is equals to 2m square minus 3m plus 10. So if suppose here if any term is missing, then you have to write again one step, you have to add that term, and here our divisor is our m minus 5. Okay, so here whatever your divisor here is m minus 5, then you have to take opposite of that. If minus 5 is there, you have to take plus 5, and if plus 5, then you have to take minus 5. So how you will solve division method, sorry, synthetic division method. So here 1 2 line you have to keep. I am here keeping 3 line. So here first, if you are minus 5, you have to take here plus 5. If you are plus 5, you have to take minus, means opposite sign. You have to take same number but opposite sign. And here coefficient, it should be in descending order. Here is 2, then 1 and then constant. So already here it is in descending order power. Now we will take the coefficient. Here m square is 2. So here we will take 2. Then minus 3. So minus 3. Then 10. So here 10. Okay, so like this, the next step what we have to do, this first number as it is you have to write down here 2. So as it is you write down, then this 2 you multiply 5 to the 10, and that 10 answer means whatever multiplication answer you will get, that multiplication answer you have to write here, means 10 we got. Then again here addition, minus plus minus, 10 minus 3 will get 7. So 7 here. Then again this multiply with this 5. Then 5 7s are 35. That answer you write here. Then again both are positive. So 10 plus 35 will get 45. And last answer you have to write in box. So that is our remainder. Okay, so how we will solve this? First, whatever divisor, if minus you have to take plus, and if plus then you have to take minus, same number, and this coefficient you have to write here. And first of all that power should be in descending order. If any term is missing, that you have to write plus 0. Then first number as it is down, then these two multiplication answer you have to write here. Then again addition will come here.
Then again plus 35, 7 5 is 35, that answer you have to write here, and again addition, and last answer you have to write in box. Now after that we have to write coefficient form. So here we will write, therefore coefficient form. So coefficient form means here outside the box how many number that you have to write, give comma. So outside the box 2 and 7 is present. So we will write 2 comma 7. So this is the coefficient form. Then you have to write quotient. So therefore quotient is equals to, how you will write quotient? So first of all here you have to count the numbers 1 2 only numbers. So whatever numbers you are getting, that from that you have to minus 1, मीन्स जो भी आपके नंबर्स होते हैं यहाँ पे काउंट करना है आपको. यहाँ पे 1 2 दो ही नंबर है बॉक्स के बाहर. सो 2 में से हमें 1 माइनस करना है, मतलब जितने भी नंबर अगर आपको 3 मिलते हैं तो 3 से 1 माइनस ही करना है, उसका फॉर्मूला है. ओके, so consider you have to minus 1 from whatever you are getting here numbers. So 2 minus 1 1, that means you have to start your answer, means क्वेश्चन का आंसर हमें स्टार्ट करना है पावर 1 से. जिसका पावर 1 हो हमें उसका भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ओके, सो इसका पावर 1 2 दो है तो दो में से 1 जाएगा, 1 बचेगा. सो वी हैव टू स्टार्ट पावर 1 एंड लेटर यू हैव टू टेक m, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन m वेरिएबल इज यूज्ड. एंड फर्स्ट कोएफिशिएंट यू हैव टू टेक 2, देन 7. सो हाउ यू विल राइट, सी 2m स्टार्टिंग हमारा पावर 1 से चालू होगा क्योंकि हमने 2 माइनस 1 किया, 1 बचा. सो इसका पावर 1, नो नीड टू राइट. देन दिस 7, ये पॉजिटिव है तो प्लस 7. सो ये हो गया इसका क्वोशंट. ओके, सो हमने कैसे क्वोशंट फाइंड किया, हमने काउंट किया 1 2, दो नंबर थे, दो नंबर से 2 नंबर से 1 माइनस किया तो हमारा 1 बचा. सो योर आंसर, योर क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम पावर 1. और वेरिएबल यहाँ क्वेश्चन में m है तो m वेरिएबल यूज़ किया है, और कोएफिशिएंट पहले का 2 है, सो 2m प्लस, ये इफ़ सपोज यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस लेते थे, बट हियर पॉजिटिव, सो प्लस 7. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन एंड व्हाट विल कम रिमाइंडर. So remainder means this is whatever it will come in this last box, that is your remainder. जो भी last box में आता है वो आपका remainder है. So it will come 45. Okay. So what was the question? Divide each of the following synthetic and linear and write quotient and remainder. So हमें यहाँ पे quotient और remainder ढूंढना था. So quotient हमारा ये है and remainder हमारा ये है. Okay. So again see one time. सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, व्हाट इज़ देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन का ये फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज डिविडेंड, एंड डिविडेंड में इम्पॉर्टेंट है उसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, और अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको जो टर्म मिसिंग है वो ऐड करना है प्लस 0 लेके. एंड देन सेकेंड ब्रैकेट मीन्स दैट इज़ द डिवाइज़र. देन ऐसे बॉक्स ऐसे बनाना है. देन यहाँ पे अगर आपका -5 है तो +5 लेना है, अगर +5 है तो -5 लेना है. अब यहाँ पे -5 तो हमने +5 लिया. देन कोएफिशिएंट 2 -3 एंड 10. सो 2 -3 10 लिखे. देन फर्स्ट नंबर एज इट इज़ डाउन. देन 2 × 5 10. देन माइनस करोगे तो 7 आएगा. देन अगेन 7 × 5 35, दैट आंसर राइट हियर. देन 10 + 35 45. and last answer you have to write always in bracket. So then coefficient form is, coefficient form लिखते हैं जो भी बॉक्स के बाहर नंबर बचे हैं वो कॉमा दे के लिखते हैं ब्रैकेट में. देन कितने नंबर से 1 2. सो 2 नंबर है तो जितने भी नंबर्स मिलते हैं आपको उसमें से 1 माइनस करना है, तो 2 - 1 1 का मिलेगा. मीन्स हमारा वो पावर स्टार्ट होगा 1 से. एंड कोएफिशिएंट फर्स्ट का 2
एंड प्लस 7 इसका पावर 1 है और डिसेंडिंग ऑर्डर है देखो 1 देन कांस्टेंट टर्म देन रिमाइंडर मीन्स जो भी लास्ट में आता है बॉक्स में दैट इज योर रिमाइंडर. नाउ सेम दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व बाय लीनियर डिवीजन मेथड एंड आंसर उसका भी सेम आएगा, उसका भी क्वेश्चन एंड रिमाइंडर सेम आएगा. सो विल सॉल्व बाय लीनियर डिवीजन मेथड. Now see this is the linear division method. In linear division method first of all जो भी आपका क्वेश्चन है, हाँ सिंथेटिक डिवीजन में उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना इम्पॉर्टेंट है और अगर ऑलरेडी है तो नो नीड टू डू. बट इन लीनियर डिवीजन नो प्रॉब्लम, अगर उसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, कुछ टर्म मिसिंग है तो भी नो प्रॉब्लम, जैसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं. बट सिंथेटिक में इम्पॉर्टेंट है कि उसका डिवीज़न पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना है चाहिए. सो फर्स्ट वी विल राइट आवर क्वेश्चन का जो डिविडेंड है, ओके क्वेश्चन में जो डिविडेंड है वो लिखेंगे 2m² माइनस 3m प्लस 10. ओके दिस इज अवर डिविडेंड. सो यहाँ पे इज इक्वल्स टू देंगे. अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो नंबर है 2, अब यहाँ पे स्क्वायर है. ओके थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ स्क्वायर है मीन्स वॉट एवर पावर यू हैव टू डिक्रीज 1, उससे एक माइनस करना है, एक कम लेना है. ओके अगर यहाँ m² है तो आपको m लिखना है और अगर सपोज m³ रहता तो हम m² मतलब एक लेस लेना है पावर एंड वो एक m के जगह यहाँ 2m थे हमने एक m लिखा और एक m के प्लेस पे हम अपना डिवाइज़र लिखेंगे. जो डिवाइज़र हमारा क्या है m-2 m-5 ये हमारा डिवाइज़र. ओके सो हमारे पास 2m थे, एक m हमने एज इट इज़ लिया और एक m की जगह हम लेंगे m-5. ओके देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट और ये लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करना. क्या आता है 2m इंटू 5 माइनस 5 मीन्स 2 5 ज़ा 10 माइनस 10 आएगा, माइनस 10m आएगा. अब माइनस 10m को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे प्लस 10m. ओके ऑलवेज रिमेंबर first step is whatever your first term in that, if power is 2 you have to take 1 less, if 3 then you have to take square, if cube then you have to take, if a 4 power then you have to take cube. okay and जो एक m बचता है उस m के जगह हम अपना डिवाइज़र की टर्म लिखेंगे. डिवाइज़र मीन्स जो ये डिवाइड में होता है ये ब्रैकेट, ये हमारा डिवाइज़र है. सो उस एक m की जगह ये लिखेंगे. देन ये बाहर वाला है जो और ये सेकेंड टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव लेंगे और अगर निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे. सी हमारा 5 2 ज़ा 10 माइनस 10m इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 10m आता है तो हम उसको कैंसिल करने के लिए प्लस 10m लेना है. ओके देन आफ्टर दैट जो भी ये दो टर्म बची है एज इट इज़ राइट माइनस 3m प्लस 10. ओके सो ये जो लास्ट की दो टर्म है वो एज इट इज़ लिखे. नाउ नेक्स्ट टर्म व्हाट, दिस एज इट इज़ राइट. फर्स्ट जो टर्म है सेम लिखो 2m इंटू m-5 फर्स्ट टर्म एज इट इज़. नाउ हियर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इफ़ अगर दोनों भी लाइक टर्म है तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करो. ओके अगर लाइक टर्म नहीं है तो फिर से एक m की जगह अपना डिवाइज़र लिखेंगे. बट यहाँ पे 10m एंड 3m बोथ आर लाइक टर्म, बोथ आर mm, सो वी कैन सब्सट्रैक्ट. सो 10 माइनस 3 इट विल कम 7m. ओके प्लस दिस 10 एज इट इज. अंडरस्टूड. सो हियर 10 minus 3 if you will do you will get 7m plus 10. now next step this as it is, ये अब एंडिंग तक वैसे ही करना है 2m m-5. नाउ हियर अब यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट है, अनलाइक टर्म है. तो यहाँ पे क्या करना है, जब अनलाइक टर्म मिल जाती है तो फिर से एक m के जगह हमें डिवाइज़र लिखना है. तो यहाँ ऑलरेडी एक ही m है सो यहाँ पे 7 सिर्फ लिखेंगे और इस m के जगह हम अपना डिवाइज़र m-5 लिखेंगे. ओके सो 7 एज इट इज़ एंड जो ये एक m है उसके जगह हम m-5. देन अगेन मल्टीप्लाई ये आउटसाइड और ये इनसाइड का मल्टीप्लिकेशन.
सो 7 5 35 एंड प्लस माइनस माइनस, सो -35 आया है, -35 को कैंसिल करने के लिए +35 लेना है, सो विल राइट हियर +35 एंड दिस लास्ट वन एज इट इज लास्ट, यहाँ पे 10 बच जाए, सो +10 एज इट इज। ओके, सो ये व्हाट वी डिड, 7 5 35, -35 को कैंसिल करने के लिए हमने +35 लिखे और जो लास्ट में +10 था एज इट। नाउ दिस बोथ टू टर्म वी विल राइट एज इट इज। ठीक है, ये दोनों एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों का प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। Now 35 plus 10 it will come 45. Now next step what we are to do, जब ऐसे कांस्टेंट नंबर ऐड हो जाता है, सिर्फ कांस्टेंट बचता है, तो क्या करना है, जो भी यहाँ पे m वाली टर्म उसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, m-5, सो विल कॉमन आउट m-5 एंड इन ब्रैकेट व्हाट विल रिमेन, ये दो टर्म में से हमने m-5 कॉमन निकाला है, सो यहाँ पे बचेगा 2m और प्लस यहाँ पे 7 बचेगा, so 2m plus 7 and this plus 45 as it is. Okay, so what we did, we common out from first and second term, यहाँ पे नहीं था इसलिए कॉमन नहीं निकला, so सिर्फ यही दो टर्म में हमारा m-5 कॉमन निकला, यहाँ पे 2m plus this 7, so इसको हमने सेकेंड ब्रैकेट में लिखा, plus 45 as it is. Now here this side means this side our this dividend, ये जो हमारा क्वेश्चन है डिविडेंड वो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड में, 2m² माइनस 3m प्लस 10। ओके, सो ये हमारा डिविडेंड हो गया 2m² माइनस 3m प्लस 10 और यहाँ से हमने कॉमन निकाला, जो आउटसाइड वाले हैं वो सेकेंड ब्रैकेट में प्लस 10। अब यहाँ पे देखिए हमें ये हमारा अब लास्ट आंसर है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर, हमें दो चीज़ ढूंढना। ये मीन्स हमारा डिविडेंड ये क्वेश्चन में देखे था और ये है हमारा डिवाइज़र, ये भी क्वेश्चन में देखे था। अब यहाँ पे बचा क्या, ये है आपका क्वेश्चन और लास्ट वाला जो कांस्टेंट नंबर होता है ये है रिमाइंडर। ओके, ये हमारा डिवाइज़र था क्वेश्चन में देके, ये डिविडेंड था क्वेश्चन में देके, ये हमारा हमें फाइंड करना था क्वोशंट, ये हमारा क्वोशंट है और ये है लास्ट जो कांस्टेंट नंबर है विदाउट वेरिएबल, सो वो हमारा रिमाइंडर है। सो यहाँ पे भी देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 2m प्लस 7, ये भी 2m प्लस 7, ये रिमाइंडर है 45, सो ये भी रिमाइंडर 45। यहाँ पे लिखना है आपको देयरफॉर क्वोशंट is equals to 2m plus 7 and remainder I will write by a capital R because place is not here and remainder is 45. So like this you have to solve each question from this practice set by both method and both method you will solve, you will get the same answer. अगर suppose आपका same answer नहीं आ रहा है तो means कहीं आपकी mistake हुई है। So again see one time. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका डिविडेंड है, डिविडेंड मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट, ये एज इट इज़ लिखना है। आप फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी पहली टर्म है उसमें से एक पावर लेस लेना है। अभी स्क्वायर था तो हमने सिर्फ m लिया और 2m थे तो 1m हमने लिखा और 1m की जगह हमारा जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र मीन्स जो ये सेकेंड ब्रैकेट है, इसको डिवाइज़र बोलते हैं। देन फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन लिए 2m into 5, so 2m minus 5 if you will multiply minus 10m, so minus 10m मिला तो आपको प्लस 10m लेना, मीन्स अपोजिट लेना है। अगर आपको प्लस 10m मिलता तो हम माइनस 10m लेते थे। ओके, देन जो भी लास्ट की टर्म बची यहाँ पे ये दो टर्म वो एज इट इज़ लिखना है, दिस as it is. Now here if both are like term you have to add, if like term नहीं है तो हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, बट यहाँ पे like term है सो 10 minus it will come 7m, this plus 10, this as it is again। अब यहाँ पे 7, अब ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। सो ये सेम स्टेप जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, m के जगह एक m के जगह हमारा डिवाइज़र, अब यहाँ पे ऑलरेडी एक ही m है, सो 7 हम लिखेंगे सिर्फ और ये m के जगह हम लिखेंगे m-5, ये हमारा डिवाइज़र है। देन इफ आउटसाइड और ये इनसाइड का मल्टीप्लिकेशन -35 आएगा
-35 को कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन +35 लेंगे एंड +10 एज इट इज, देन दिस टू टर्म एज इट इज, अगेन 35 + 10 विल कम 45. सो जब यहाँ पे कांस्टेंट ऐड हो जाता है तो ये हमारा लास्ट है. फिर उसके बाद हम कॉमन देखते हैं. कॉमन मीन्स यह in remaining term m-5 is a common, so we'll write m-5, then यहाँ पे बचेगा 2m और यहाँ पे +7 मीन्स आउटसाइड वाले सेकेंड ब्रैकेट में, जैसे हम फैक्टराइजेशन में सॉल्व करते हैं, एंड +45 एज इट इज़. एंड दिस साइड मीन्स ये आपका जो डिविडेंड है वो यहाँ पे लिखना है. सो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर. सो ये हमारा क्वोशिएंट है. ओके, ऐसा लिखना, क्वेश्चन इज इक्वल टू और ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 45. सो सेम वी गॉट बोथ आंसर, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर. सो सेम यही मेथड आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन में दोनों मेथड सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd. ओके, सो 3rd वी विल सॉल्व बाय बोथ मेथड. First of all, we'll solve by synthetic division. So here so in synthetic division it is important to write in descending order. Okay, so यहाँ लिखेंगे डिविडेंड. डिविडेंट हमारा है y³ - 216. ओके, बट आफ्टर y³ स्क्वायर की टर्म, देन 1 पावर मीन्स सिर्फ y की टर्म, देन कांस्टेंट टर्म. ओके, ऐसे ऑर्डर में चाहिए. सो यहाँ पे हमारी 2 टर्म मिसिंग, एक स्क्वायर वाली और एक पावर 1 वाली. 3 के बाद पावर 2, देन पावर 1 और देन लास्ट में ये कांस्टेंट आएगा. कांस्टेंट है, सो हमें 2 टर्म मिसिंग है. सो वो 2 टर्म हम ऐड करेंगे +0 लेके. सो हियर we'll write y³ + 0y² + 0y - 260. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे क्यूब के बाद स्क्वायर की टर्म और 1 वाली टर्म नहीं थी तो हमने 0 प्लस करके लिए, और हमारा y वेरिएबल था तो हमने y वेरिएबल लिए, एंड लास्ट का कांस्टेंट टर्म एज इट इज. सो दिस इज अवर डिविडेंड. नाउ आफ्टर डिवाइजर क्या है यहाँ पे, so divisor means this second bracket. so we have to make box. अब यहाँ पे बॉक्स में अगर जो डिवाइजर में -6 है तो हम +6 लेंगे. अगर सपोज यहाँ +6 रहता है तो -6 अपोजिट साइन, ये याद रखिए. देन हमें क्वोशिएंट जो डिविडेंड के क्वोशिएंट है, ये ओल्ड वाले नहीं, न्यू वाले जो हमने बनाए, ये हमारे इसके कोएफिशिएंट लेना. तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, देन 0, देन 0, देन -216. सो ऐसे लेंगे. पहला 1, नथिंग मीन्स 1 होता है, देन 0, देन ये 0, देन -216. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सेम प्रोसीजर करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया. सो 1 एज इट इज़ डाउन, देन 1 × 6, 6, देन 0 + 6, 6, 6 6 जा 36, देन 0 + 36, 36, again 36 × 6. if you will do, you will get 216. ओके, 36 × 6. यहाँ याद रखिए, इधर मल्टीप्लिकेशन और जो आंसर आएगा इधर, फिर इन दोनों का ऐड, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन इधर लिखेंगे, फिर इनका ऐड, फिर इन दोनों का 36 × 6 216, फिर इनका ऐड है माइनस प्लस माइनस. तो यहाँ पे आंसर हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 0 मिलेगा. ओके, सो उसके बाद हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट फॉर्म मीन्स जो बॉक्स के बाहर होते हैं उनको हम ब्रैकेट में कॉमा दे के लिखते हैं. सो 1, 6, 36. सो दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म. आफ्टर दैट कोएफिशिएंट फॉर्म वी हैव टू राइट क्वोशिएंट. क्वोशिएंट मीन्स यहाँ काउंट करेंगे कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर्स. सो 3 - 1 2. So your answer power will start from 2 and first का कोएफिशिएंट 1, 6, then 36 ऐसे लिखना है. और डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर पहला 2 रहेगा, देन 1 रहेगा, देन कांस्टेंट, एंड वेरिएबल यहाँ पे y है. सो y वेरिएबल पावर हमारा 2 से चालू हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ 1
2 3 3 नंबर्स है, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे मीन्स 2। सो यहाँ पे वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे प्लस 6, 2 के बाद वाई, देन प्लस 36। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका क्वेश्चन कुछ नहीं मीन्स 1, ये 6, देन 36 और पावर हमारा 2 से चालू होगा, देन 2 1 कांस्टेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स जो बॉक्स में होता है, बॉक्स में 0। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बाय सिंथेटिक डिवीजन। नाउ वी विल सॉल्व बाय लीनियर डिवीजन मेथड। सो सेकेंड मेथड, so now we will solve by linear division method. so this is our dividend, जो क्वेश्चन ये डिविडेंड दे के था, ओके ओरिजिनल। अब यहाँ पे लीनियर में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी टर्म मिसिंग है नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पावर 3 से चालू है तो हमें एक कम करना है, मीन्स स्क्वायर से चालू करेंगे। और जो एक कम किए हैं पावर, उसमें हम एक वाई के जगह हमारा जो ये डिवाइज़र है y माइनस 6, ये हम डिवाइज़र लिखेंगे y माइनस 6। देन आउटसाइड और इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर, माइनस 6 वाई स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम प्लस 6 वाई स्क्वायर लेंगे एंड दिस माइनस 216 एज इट इज़। ओके, ये माइनस 216 एज इट इज़ लिखना है। देन अगेन नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज़ वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस 6 प्लस, अब यहाँ पे ये ऐड नहीं कर सकते हैं तो सेम स्टेप हम करेंगे फॉलो। यहाँ वाई स्क्वायर है तो उसे एक कम मीन्स 6 वाई लिखेंगे और एक वाई के जगह हमारा जो डिवाइज़र है y माइनस 6। देन अगेन आउटसाइड और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये एक्सप्लेन समझने के लिए मैं कर रहे हैं लाइन। सो 36 हो जाएगा माइनस 36, 6 6 ज़ा 36 माइनस 36 बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड y, सो माइनस 36y आएगा एंड माइनस 36y को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे प्लस 36y एंड माइनस 216 एज इट इज़। ओके, देन अगेन नेक्स्ट स्टेप में ये दो एज इट इज़ रह गए, फर्स्ट और सेकेंड टर्म, वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस 6 प्लस 6y इंटू वाई माइनस 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अगेन सेम हमें फॉलो करना है। एक y है तो इसी y के जगह हमारा डिवाइज़र, सो हम यहाँ सिर्फ 36 लेंगे और ये y के जगह हमारा डिवाइज़र है y माइनस 6। ओके, सो अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 6। सो 36 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो 216, बट माइनस आएगा माइनस 216, माइनस 216 को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे प्लस 216। सो यहाँ पे प्लेस नहीं, सो आई विल राइट डाउन प्लस 216 एंड दिस लास्ट वन माइनस 216 एज इट इज़। ओके, ये दो टर्म एज इट इज़, हमने एक y के जगह हमारा डिवाइज़र लिखा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 216 आता है, उसको कैंसिल करने के लिए प्लस 216 और ये वाला जो लास्ट में है एज इट इज। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप दिस ऑल थ्री टर्म्स एज इट इज़ लिखना है और ये प्लस माइनस हो जाएगा 0, प्लस 216 माइनस 216 प्लस माइनस माइनस, तो 0 हो जाएगा। सो वी विल राइट हियर वाई स्क्वायर वाई माइनस 6 प्लस 6y y माइनस 6 प्लस 36 y माइनस 6 एंड प्लस 0। ओके, ये दोनों का ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 और ये साइड जो हमारा डिविडेंड है y क्यूब माइनस 216। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट को छोड़ के मीन्स ये हमारा रिमाइंडर हो गया, बाकी के जो ये 3 टर्म्स है इसमें से कॉमन क्या है y माइनस 6 y माइनस 6 y माइनस 6, तो हम कॉमन निकालेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो आउटसाइड वाले हैं वो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36। एंड ये साइड में एज इट इज़ हमारा जो डिविडेंड है वाई क्यूब माइनस 216। ओके, सो दिस इज़ आवर डिविडेंड, दिस इज़ आवर डिवाइजर, दिस बोथ वे गिवन इन क्वेश्चन और ये हमारा हो गया क्वेश्चन और ये हो गया रिमाइंडर। सो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अब मैं क्वेश्चन का क्यू लिखूँगी। ओके, फुल स्पेलिंग आप लोग लिख लेना, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 एंड रिमाइंडर मीन्स लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है
रिमाइंडर 0। सो सेम देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36, और इसमें भी हमें सेम मिला था वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36। मीन्स सिंथेटिक डिवीजन से भी हमारा सेम ही आंसर आया और लीनियर डिवीजन से भी सेम आंसर। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन में हमारे कुछ टर्म मिसिंग थे, तो हमने सिंथेटिक डिवीजन में प्लस 0 ले लिया था। ओके, और लीनियर डिवीजन में इम्पॉर्टेंट नहीं है, नो नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा टर्म, एज इट इज सॉल्व करते आइए, यू विल गेट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके, so question number 4 I have written here. So first we'll solve by synthetic division method. So dividend is equals to, this is our dividend. Now here see, we'll see which term is missing, it is in descending order or not. So 4 पावर के बाद आएगा पावर 3, देन पावर 3 के बाद पावर 2। अब देखो यहाँ पावर 2 इधर लिखा है लास्ट में, सो हमें इसे अरेंज करना है। सो स्क्वायर वाली टर्म हम पहले क्यूब वाले के बाद में स्क्वायर वाली लिखेंगे, स्क्वायर के बाद ये पावर 1 वाला, देन पावर 1 के बाद एक कांस्टेंट टर्म चाहिए, वो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, सो वो हम लेंगे प्लस 0। ओके, कांस्टेंट टर्म भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे रहना चाहिए, अगर नहीं है तो आप प्लस 0 ले सकते हैं। देन वी विल राइट फर्स्ट अरेंज 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब। अब क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म लास्ट में, तो हम उसको पहले लिखेंगे, साइन चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज़। एंड देन ये x वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म नहीं, सो विल टेक एज अ 0। ओके, हियर what we did, square term first we wrote, then 4x, then constant is not given, so we'll do plus 0, and divisor is given in our question. So divisor means this is our divisor, x plus 3. So ये हो गया x plus 3। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। So plus 3 means you have to take minus 3। ओके, पॉजिटिव है तो निगेटिव लेंगे, एंड इसके सभी के कोएफिशिएंट 2, 3, -2, 4 और लास्ट में 0। So first number as it is down 2, then 2 into -3 -6, then plus minus minus, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है। देन अगर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस एंड 3 3 ज़ा 9, सो 9 हम यहाँ लिखेंगे। अगेन माइनस प्लस इज माइनस, सो 7 - 2, 9 - 2 7, एंड ग्रेटर नंबर साइन पॉजिटिव। देन अगेन 7 3 ज़ा 21, -21 आएगा, सो वो -21 यहाँ लिखेंगे। देन अगेन प्लस माइनस माइनस, 21 में से 4 गया तो 17, देन ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो -17 लिखेंगे। अगेन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 17 इंटू 3 करोगे तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलेगा 51। देन 0 + 51 51, सो लास्ट आंसर आपको बॉक्स में लिखना है। सो ये हमारा मिला 51, दिस इज द लास्ट आंसर एंड दैट इज द रिमाइंडर। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन फॉर्म, सेम प्रोसीजर जाना है सभी में। कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म मीन्स जो बॉक्स के बाहर जो भी नंबर है उन्हें कॉमा दे के लिखना है। सो 2, -3, -7, -17। ओके, ये सब हमने कॉमा देके, सो ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। उसके बाद होता है क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे कोएफिशिएंट में है बॉक्स से बाहर जो भी नंबर से कितने काउंट करना, 1 2 3 4। 4 मीन्स हमें उसमें से एक माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट आवर आंसर फ्रॉम पावर 3 एंड वी हैव टू टेक इन डिसेंडिंग ऑर्डर। So we'll start from power 3 because 4 number है, 4 में से 1 minus means 3, you'll start from power 3, then 2, then 1, then constant term, and first का coefficient 2, then -3, then 7, then -17, and variable you have to take x because in this question x variable, so we'll get 2x x variable, okay, not m, 2x cube -3 x square plus 7
x माइनस 70. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2, देन -3, देन 7, देन -17 और 1 2 3 4 4 नंबर थे तो 4 में से 1 गया, तो 3 मीन्स पावर हमारा 3 से चालू हुआ, 3 2 1 कांस्टेंट. सो लाइक दिस इज अवर क्वेश्चन. सो एंड रिमाइंडर राइट डायरेक्ट कैपिटल R. रिमाइंडर मीन्स लास्ट वाला जो होता है वो रिमाइंडर, एंड इट इज़ 51. सो दिस इज अवर रिमाइंडर एंड दिस इज अवर क्वेश्चन. सो ये हो गया हमारा सिंथेटिक डिवीजन से आंसर. नाउ विल फाइंड सेम क्वेश्चन बाय लीनियर डिवीजन मेथड. सो दिस इज़ अवर लीनियर डिवीजन मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा डिविडेंट है मीन्स ये फर्स्ट ब्रैकेट वो एज इट इज़ लिखे. अब यहाँ पे भी हमें थोड़ा अरेंज करना है. स्क्वायर वाली टर्म हम फर्स्ट लिखेंगे, देन लास्ट में ये यहाँ पे मिसिंग टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, बट जो स्क्वायर वाली टर्म है वो हम फर्स्ट लिखेंगे. 2x⁴ प्लस 3x³ देन स्क्वायर वाली टर्म -2x², देन प्लस 4x. ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं. वही टर्म हमने जो लास्ट में थे उसको पहले लिखे और ये वाली हमने लास्ट में लिखे हैं, क्योंकि हमें जब हम सॉल्व करेंगे तो लाइक टर्म पास में आना चाहिए इसीलिए. नाउ योर फर्स्ट टर्म इज़ पावर 4, सो हम इसमें से 1 माइनस करेंगे मीन्स हम विल स्टार्ट फ्रॉम पावर 3, एंड एक x के जगह हम अपना डिवाइज़र क्या है हमारा यहाँ पे डिवाइज़र इज़ x + 3. सो दिस x + 3 वी विल पुट इन प्लेस ऑफ 1x. सो हमारा चालू होगा 2x³ और एक x के जगह हमारा डिवाइज़र 2x³ and in place of 1x we will put our divisor x + 3. Then again multiply these 2x³ into 3 means 2 3s are 6x³ आएगा. प्लस 6x³ को कैंसिल करने के लिए हम लगाएंगे -6x³. ओके, प्लस 6x³ को कैंसिल करने के लिए -6x³ एंड रिमेनिंग जो भी टर्म है 3x³ -2x² प्लस 4x ये एज इट इज़ लिखना है. सो वी विल राइट हियर प्लस 3x³ -2x² प्लस 4x. ओके, देन अगेन ये अब लास्ट तक एज इट इज़ रहेगा 2x³ into x + 3. नाउ अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म दिख रहे हैं, दोनों भी x³ है, सो हम इसको ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. माइनस प्लस विल गेट -6 -3 3 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, सो -3x³ एंड दिस 2 एज इट इज़. ये जो लास्ट के दो टर्म है ये एज इट इज़ -2x² प्लस 4x. ओके, नाउ अगेन दिस as it is 2x³ x + 3. अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, सो यहाँ पे भी सेम स्टेप रिपीट करना है. x³ है तो हम इसे एक लेस करेंगे मीन्स x² लिखेंगे. सो -3x² एंड एक x के जगह हम अपना डिवाइज़र x + 3. देन अगेन मल्टीप्लाई दिस माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, सो -9x². -9x² को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे प्लस 9x² एंड दिस टू लास्ट टू टर्म वी विल राइट हियर एज इट इज़ -2x² प्लस 4x. ओके, ये एज इट इज़ लिखे. सेम दिस अगेन नेक्स्ट स्टेप एंडिंग तक वैसे लिखना है क्योंकि लास्ट में हमें उससे कॉमन निकालना है इसीलिए. ओके, देन अगेन बोथ आर लाइक टर्म, स्क्वायर की टर्म है तो ऐड होगा. 9 - 2 विल गेट 7x² प्लस दिस 4x एज इट इज़. देन अगेन नेक्स्ट स्टेप 2x³ x + 3 -3x² x + 3. अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म नहीं है सो हम इसको ऐड नहीं कर सकते. अगेन सेम स्टेप रिपीट करेंगे. x² है तो एक लेस लेंगे मीन्स 7x और एक x के जगह हमारा डिवाइज़र लिखेंगे. सो 7x एंड 1x के जगह x
प्लस 3, ये हमारा डिवाइज़र है। देन अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 7 21, 21x आएगा प्लस 21x को कैंसिल करने के लिए, नाउ प्लेस इज नॉट हियर, आई विल राइट डाउन। प्लस 21x को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे माइनस 21x एंड दिस प्लस 4x एज इट इज़। ओके, देन अगेन नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों ये जो थ्री टर्म्स है एज इट इज लिखना है। देन यहाँ तक सेम लिखना है। देन यहाँ पे ये दोनों भी लाइक टर्म है, माइनस प्लस करना है एंड माइनस प्लस अगर 21 में से 4 गए तो 17 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, so minus 17x will remain. Okay, again in next step till here this 3 term as it is. So here what we'll do, these 3 terms as it is, and in place of again now this x we will write our divisor, so minus 17 into x plus 3. Now again we'll multiply this first and last, so minus 17 into 3, if you will 17 3s it will come 51. ओके, माइनस 51 कैंसिल करने के लिए हम लेंगे प्लस 51, सो माइनस 17 इंटू 3 विल डू माइनस 51, माइनस 51 को कैंसिल करने के लिए प्लस 51। नाउ दिस 4 टर्म एज इट इज़, हाँ हो गया ना हमारा, ये कांस्टेंट टर्म मिल गया, मीन्स ओवर, नो नीड टू डू अगेन। नाउ व्हाट विल डू, फ्रॉम दिस 1 2 3 4 टर्म में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 3 विल कॉमन आउट, सो हियर वी विल गेट x प्लस 3 कॉमन आउट एंड रिमेनिंग जो भी आउटसाइड वाले हैं वो चारों टर्म के आउटसाइड वाले एक ब्रैकेट में, मीन्स 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 17, और जो लास्ट में प्लस 51 है वो एज इट इज़, एंड दिस साइड इज़ अवर डिविडेंड। ओके, अब यहाँ प्लेस नहीं है तो नो नीड, आई नॉट राइट, सो हियर वी कॉमन आउट x प्लस 3, जो भी बाहर वाली टर्म्स है उसको हमने यहाँ पे लिखा एंड प्लस 51। नाउ हियर दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द क्वोशंट एंड दिस इज द रिमाइंडर, सो हियर देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 7x minus 17 and remainder is 51. So like this you have to solve, you can take a screenshot of this answer. So from here your answer is started, fourth one. First is a synthetic division, then we'll see linear. First you take screenshot of this page, then take a screenshot of this. So here remaining one you have to solve same. Okay, यहाँ पे जैसे अभी पावर 4 है, 4 के बाद पावर 3 नहीं है तो वो लेना है, और स्क्वायर के बाद पावर 1 वाली नहीं वो लेना है। यहाँ 2 टर्म मिसिंग है, यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर है, 1 है, कांस्टेंट, यहाँ ऑल आर गिवन। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व रिमेनिंग एंड ऑल क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बाय बोथ मेथड, linear and synthetic, you will get same answer. Thank you so much.